Hi guys, welcome back to my channel and today's class will proceed with analysis of JEE Mains Maths previous year questions of chapter inverse trigonometric function। JEE Mains 2024 में जनवरी सेशन में चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए थे आज हम उनका एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो 2024-27 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपका कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन number of positive real values of x satisfying tan inverse x plus tan inverse 2x equal to pi by 4 and these are the option। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें समझने वाली बात ये है that we know that tan inverse a plus tan inverse b, बट अगर आप इक्वेशन देखो तो क्या tan inverse x plus tan inverse 2x and it is equal to what? It is equal to pi by 4। So we can use the formula or identity tan inverse A plus tan inverse B. Tan inverse A and tan inverse B, which is what? Which is tan inverse within bracket A plus B, that is x plus 2x upon 1 minus AB, that is x into 2x. And it is equal to what? It is equal to pi by 4. It is equal to pi by 4. Now this tan inverse when shifted to the right hand side, we will have x plus 2x क्या हो जाएगा 3x upon 1 minus 2x square and it will be equal to tan pi by 4. It will be equal to tan pi by 4. Finally, what we will have 3x upon 1 minus 2x square. Tan pi by 4 is 1. Cross multiply करके what we will have 3x will be equal to 1 minus 2x square, right? अब इसको आप यहाँ शिफ्ट कर दो तो it will be 2x square plus 3x। 1 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो -1 इक्वल टू 0। -1 इक्वल टू 0। अब देखो डायरेक्टली तो ये होगा नहीं फैक्टराइज, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो माइनस बी दैट इज -3 प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 4ac माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9 प्लस 8 दैट इज 17 बाय 2a। तो x की बेसिकली देखो दो वैल्यू आ रही है -3 प्लस रूट 17 बाय 4 एंड -3 माइनस रूट 17 बाय 4। अब देखो ये वैल्यू होगी नेगेटिव और क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, considering only the principal values of inverse trigonometric function the number of positive real values। तो पॉजिटिव रियल वैल्यूज तो एक ही आ रही है। अगर हम पॉजिटिव रियल वैल्यूज की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव रियल वैल्यूज एक ही आ रही है -3 बिकॉज रूट 17 4 पॉइंट समथिंग होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो कितनी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है 1। तो राइट आंसर विल बी 1, दैट इज ऑप्शन 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 29 Jan shift to 2024। क्वेश्चन क्या है? x इक्वल टू m by n where m n are co-prime natural numbers। नेक्स्ट क्वेश्चन इज and this question is from 29 Jan shift to question is let x equal to m by n, mn are co-prime natural numbers, be a solution of the equation cos within bracket 2 sin inverse x equal to 1 by n and let alpha beta where alpha is greater than beta be the roots of the equation mx square minus nx minus m plus n equal to 0, then the point within bracket alpha beta lies on the line and these are the option। देखो first of all given equation is here, given equation is cos within bracket 2 sin inverse x equal to 1 by 9। Now what we will do here, let sin inverse x equal to theta, which implies x is equal to sin theta। अब साइन इनवर्स x की जगह अगर हम थीटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos 2 theta equal to 1 by 9। Now we know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta, which implies we can say that 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta। And what does it mean? It means that 2 sin square theta
टू साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या है? 1/9, तो इट विल बी 1/9। तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 8/9। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 4/9। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। साइन थीटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? Let x is equal to m by n, where m and are co-prime natural numbers. Be a solution of the equation. Be a solution of the equation. तो देखो, as per question, alpha is greater than beta with the roots of the equation. With the roots of the equation. तो देखो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? साइन थीटा, here साइन थीटा will be equal to 2/3. Here साइन थीटा will be equal to 2/3. Why? Because natural number की बात हो रही है और साइन थीटा क्या x है, and x is equal to 2/3, and as per question x is equal to m by n. It means what? It means m is equal to 2 and n is equal to 3. ठीक है? Now we have to find the value of mx square minus nx minus m plus n equal to 0. Now we have to find the value of mx square minus nx minus m minus m plus n equal to 0. देखो in place of m, we will put 2, so it will be 2x square. In place of n, we will put 3, so it will be minus 3x. Again, minus 2 plus 3 will be equal to 0. Finally, what we will have? 2x square minus 3x plus 1 equal to 0. Plus 1 equal to 0. अब देखो ये क्या हो जाएगा? 2x square minus 2x and 2 1 जा 2 minus x plus 1 equal to 0. Now 2x common, it will be x minus 1. Minus 1 common, x minus 1 equal to 0. Finally, what we will have? देखो कॉमन फैक्टर क्या है आपका? x minus 1. Another factor is 2x minus 1 equal to क्या हो जाएगा? 0. It means x will be equal to 1 और x will be equal to 1/2. अब as per question अल्फा is greater than बीटा, जो रूट्स है उसमें जो अल्फा है वो बीटा से बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा विल बी इक्वल टू 1 एंड बीटा विल बी इक्वल टू 1/2। तो 1 और 1/2, तो जो यहाँ पे जो पॉइंट है, देन दिस पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, तो ये पॉइंट क्या हो गया? 1, 1/2। अब ये किस इक्वेशन पे लाई करेगा? देखो अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे रखोगे तो 3 1 जा 3, ये हो जाएगा +2 5, तो इसको तो इस पर तो लाई करेगा नहीं। यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5 -4, इस पर भी लाई नहीं करेगा। 3 1 जा 3 और -1, इस पर भी लाई नहीं करेगा। यहाँ देखो x की जगह 1 रखो, 5 1 जा 5 +4 9, ये आपका आंसर होगा। जब आप x की जगह 1 रखोगे और y की जगह 1/2 रखोगे, इट विल बी इक्वल टू 9, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 31 Jan shift 1 2024. Question is, for alpha beta gamma not equal to 0, if sin inverse alpha plus sin inverse beta plus sin inverse gamma equal to pi, can I say that sin inverse alpha pi/3, sin inverse beta pi/3, sin inverse gamma pi/3? In that case it will be equal to pi. In that case it will be equal to pi. Then alpha plus beta plus gamma into alpha minus beta, gamma plus beta is equal to 3 alpha beta, then gamma is equal to, देखो इन दिस केस साइन इनवर्स अल्फा, अगर हम ये कहते हैं कि साइन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू pi/3, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू साइन pi/3 एंड दैट इज √3/2। √3/2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है? √3/2। √3/2 और गामा भी क्या होगा? √3/2। सभी की वैल्यू सेम है। और यहाँ अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? √3/2 माइनस √3/2 और प्लस क्या हो जाएगा? √3/2। ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितने √3/2 हो गए? 3।
और इंटू में भी क्या हो जाएगा, √3/2। अब √3 देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, इट वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू 3। √3/2 को अगर आप अल्फा लेते हो 3 अल्फा स्क्वायर भी हो सकता है। √3/2 की जगह अल्फा और बीटा रखते हो तो इट विल बी इक्वल टू 3 अल्फा बीटा, जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन भी है। राइट, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन दैट केस गामा विल बी इक्वल टू। अब अगर हम गामा की बात करते हैं तो देखो, साइन इनवर्स गामा इज इक्वल टू व्हाट, पाई/3। देन गामा इज इक्वल टू क्या, क्या होगा, साइन पाई/3 होगा। इट विल बी इक्वल टू साइन पाई/3, और साइन पाई/3 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। तो गामा इज इक्वल टू √3/2 विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन। गामा विल बी इक्वल टू √3/2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 31st Jan shift 2 2024. Question is, if alpha is equal to sin inverse sin 5 and if a is equal to sin inverse sin 5 and b is equal to cos inverse cos 5, then a square plus b square is equal to। देखो, अगर आपको sin inverse sin x का ग्राफ और cos inverse cos x का ग्राफ, अगर यू आर फैमिलियर विद दीज टू ग्राफ, तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो, साइन इनवर्स साइन 5 अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। यानी कि साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से आता है। इस तरह से आपका साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनता है। दिस इज 0 एंड दिस इज पाई/2 एंड दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई/2 एंड दिस इज 2 पाई। इसी तरह से आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है। अब देखो, बात हो रही है साइन इनवर्स 5, यानी कि यहाँ पे जो एक्स है वो 5 है। अब देखो, 3 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, 3 पाई, पाई क्या हो गया, 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 9.42/2। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 4.7 समथिंग आएगा। 4.7, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो ये 5 है, एक्स जो है यहाँ पर, एक्स क्या है हमारा 5, इट विल लाई बिटवीन पाई, इट विल लाई बिटवीन 3 पाई/2, इट विल लाई बिटवीन 3 पाई/2 एंड 2 पाई, यानी कि यहाँ लाई करेगा इस लाइन पर, दैट इज 2 पाई - एक्स। तो कैन आई से दैट ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा 5। तो ए की वैल्यू तो आ गई 2 पाई - 5। ए की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई - 5। ये क्लियर हो गया? ठीक है। वैल्यू ऑफ ए इज 2 पाई - 5। इसी तरह से देखो, अगर हम बात करते हैं बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5, बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5। अब देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, वैल्यू ऑफ ए इज 2 पाई - 5। नाउ अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ की। तो देखो, अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये कुछ इस तरह से बनता है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है, लाइक दिस, वेयर दिस इज 0 एंड दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। अगेन, ये जो ग्राफ है आपका, अगेन 5 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या 5 है, एक्स की वैल्यू 5 है। तो देखो, इसमें भी जो वैल्यू है पाई और 2 पाई के बीच में ही लाई करेगी एक्स की। तो देखो इस रीजन, लेकिन देखो ये जो लाइन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे 2 पाई - एक्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, x - 2 पाई, नेगेटिव रीजन। अब देखो, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो b की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ b इज x - 2 पाई, वैल्यू ऑफ b इज x - 2 पाई। तो वैल्यू ऑफ b लिख लेते हैं x - 2 पाई, वैल्यू ऑफ b इज x - 2 पाई। अब आपको क्या फाउंड करना है, a² प्लस b²। अब देखो, a² क्या होगा, 2 पाई - 5 होल स्क्वायर, एंड b² क्या होगा, x - 2 पाई, ये भी होल स्क्वायर होगा। अब देखो, होल स्क्वायर है तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, बिकॉज ऑफ दिस होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई - एक्स, एक्स का मतलब 5। इसका मतलब बोथ a² एंड b² हैव सेम वैल्यू।
It means a square plus b square will be equal to 2 pi minus 5 whole square plus 2 pi minus 5 whole square, which will be equal to 2 into within bracket 2 pi minus 5 whole square. So it will be equal to 2 a square plus b square. 2 2 जा 4 4 5 जा 20 पाई, तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई प्लस 50. 8 pi square minus 45 plus 50, that is option, this is the right answer of this question. 8 pi square minus 45 plus 50, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है? This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा, you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.